السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان اور میں ہوں فاطمہ قاسمی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں فالج کے مرض سے متعلق آگاہی سیمینار، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ واصفی میں ادھر ہی آیا اسی اسپتال میں، اور آپ کے عظیم والد جو تھے انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا، اور مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ ایک نیورو سرجن کی اہمیت کیا ہے، اور جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی اپنے نیک کاموں کی نا، آج آپ تین یہاں پر بیٹھے ہیں، تینوں آپ اس کی اعلیٰ مثال، اور آپ اپنے والد کے پرچم کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کی عزت کو آگے لے کے چلتی ہے۔ آپ کے ساتھ پروفیسر ممریز بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا ہم بڑا میڈیکل ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں جس میں جو عورتوں کا، اس کو نا آپ سن لو ذرا، اس کو تھوڑی ایک پورا سن لے ذرا، بسم اللہ کے بعد بات آپ کریں تلاوت پہلے، باقی چیزیں سب بعد میں۔ پروفیسر ممریز صاحب ہمارے ٹاپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اور ان کے والد کا بہت بڑا نام ہے، جو آسادی صاحب کا کارڈک سرجن ہے بہت بڑے پاکستان کے، اور ہم ایک بہت بڑا ایک میڈیکل ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں جس میں آرتھو بالخصوص جو ایک سرجری ہے اور اس کے ساتھ ریہیب، وہ سارا کام ان کے ذمہ ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنے پاکستان اپنی نوعیت کا پہلا انٹرنیشنل ہوگا۔ سمیر سید صاحب سے بہت زیادہ رشتے ہیں، تو بھائی بھی ہیں، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں دل سے۔ یہ بڑے عاجز انسان ہیں، آپ یقین کریں، ان سے مل کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اس وقت یہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں کرکٹ کنٹرول بورڈ کے، اور ان کے چیئرمین محسن نقوی صاحب بھی بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، وہ بھی ایک عادل شخص ہیں، اور یہ بڑا ایک خوبصورت کمبینیشن ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے اس کرکٹ ٹیم انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی کرکٹرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عاقب جاوید صاحب، اظہر علی صاحب، عامر جمال صاحب، نعمان صاحب، محمد حریرہ صاحب، نوجوان بھی ان میں بیٹھے ہیں، اور وہ دوست بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا۔ عاقب جاوید صاحب، اظہر صاحب، یہ سٹارز ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کا باعث بنتے ہیں۔ ارشد ندیم صاحب کی بھی کامیابی کی وجہ ان کی عارضی ہے، عارضی بڑا ان کا بنیادی جزو ہے، انتہائی عاجز اور سادہ شخص ہیں۔ سلمان بٹ صاحب بیٹھے ہیں جن کے کوچ ہیں۔ میں پاکستان سے باہر تھا لاسٹ ایئر، جب میں ان کا مقابلہ دیکھ رہا تھا، بہت زیادہ سپورٹس لور نہیں ہوں، لیکن پاکستان کی عزت کا معاملہ تھا تو پورا ملک، یہ میری بیٹیاں بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں، ریسکیورز بیٹھے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ہم سب دعا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک احسان کیا پاکستان پہ، اتنی عزت دی کہ دیار غیر میں پاکستان کا جھنڈا سب سے اونچا تھا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ ہمارے ڈاکٹر وسیم ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ہیں، ٹیکنیکل معاملات میں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں لیڈ کرتے ہیں۔ سہیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بڑا ایک نیکی کا کام کیا۔ سر میں اور سمیر بھی ڈسکس کر رہے تھے، تھوڑا اگر اس کا کرٹن ساتھ لگا دیں نا آپ، تو ایک پیشنٹ کی پرائیویسی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر علی رزاق صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، بے شمار کام میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ہمارے کئی پروگرام سی ایم صاحبہ کے ہیں، کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز آپ پیلا میں ہے، ایک بچوں میں پیدائشی نقص ہے جو دل میں سوراخ ہے، تو ہم نے اس پہ جو اس کی جو ویٹنگ تھی وہ 1 ڈیڑھ 2 سال تک جا چکی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ جا چکی تھی، اور 10,000 لوگ ویٹنگ میں تھے۔ سب نے پی پی بورڈ پہ اس کو کیا، ہم نے پرائیویٹ اسپتالوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی۔ آج اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پرائیویٹ اسپتالوں میں 1500 سے زائد پروسیجرز اور بائی پاس بچوں کے کر چکے ہیں۔ کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہم کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے جس پہ ہم فری علاج کرا رہے ہیں پی کے ایل اور دیگر اسپتالوں میں جو سٹینڈرڈز ہاسپٹلس ہیں۔ ڈائلسس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اسٹروک مینجمنٹ بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ ان کے ساتھ فاروق افضل صاحب بیٹھے ہیں، بہت ہی فعال پرنسپل ہیں، آؤٹ کلاس سرجن، آؤٹ کلاس ہیومن بینگ۔ زورا باجی میری بہن ہے، سروسز میں بہت اعلیٰ کام کر رہی ہیں۔ ہمارے دونوں ایم ایس یہاں بیٹھے ہیں، فراز صاحب، عمر صاحب، اور میں یہ اکنالج کروں گا کہ میں آپ کو بہت تنگ کرتا ہوں، رات 12-1 بجے تک میں آپ کو میسج کرتا رہتا ہوں، آپ کی مہربانی، کیونکہ جب مجھے کوئی میسج آ جاتا ہے نا کسی کا پیشنٹ کا، اور مجھے باسکت نہیں پتا ہوتا وہ کون ہے، لیکن ہوتا انسان ہے، سو میں آپ کو تنگ کرتا ہوں۔ صبح آپ نے 7-8 بجے کام پہ پہنچنا ہوتا ہے، آپ کی مہربانی، آپ سنتے ہیں، آگے کہتے ہیں، لوگوں کا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ میرے ریسکیورز یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ میرے ہیروز ہیں، ہیلتھ کے ساتھ ریسکیو 1122 کا بھی میرے پاس پورٹ فولیو ہے، اور ریسکیورز کی بھی میں نے جو خدمات دیکھی ہیں وہ بھی ناقابل یقین ہے۔ ابھی 1-1.5 ماہ پہلے ایک بلڈنگ کولیپس کی، یہ بچوں کو پتا ہے، وہاں پہ یہ موجود تھے نوجوان، اور ہمارے ریسکیور جو تھے وہ نیچے آ گئے، 2 کی وہاں پہ شہادتیں ہوئی۔ تو یہ لوگ اپنی زندگی کا نذرانہ دے کے ہماری پراپرٹیز کو بچاتے ہیں، ہماری زندگیوں کو بچاتے ہیں۔ اور اس رات میو میں بھی وہاں پہ موجود تھا، رضوان نصیر صاحب بھی موجود تھے۔
जिस तरह ये अपने साथी के लिए परेशान थे, रो रहे थे बच्चियां और बच्चे, तो ये भी एक फैमिली है। मेरी नर्सेज बेटियां बैठी हैं, मैं इनको कहता ही अपनी बेटी, ये बेटियां हमारी, ये हमारी कौम की अजीम बेटी हैं और पूरी कौम को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस नामसाइद हालात में, लोड में, पेशेंट एलिमेंट के साथ ये बच्चियां काम करती हैं, इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, मेडिकल ग्रेजुएट यहाँ पर बैठे हैं। मौजूदा जो प्रोग्राम है स्ट्रोक मैनेजमेंट का, ये बहुत ही एक एक्सीलेंट प्रोग्राम है जो मोहसन भाई और सुमेर भाई ने शुरू किया था, जिसको कासिम बशीर साहब ने और फिर आसफ भाई ने, प्रिंसिपल LGH और जोरा बाजी ने इसको किया। इसको मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट ओन करेगी और कर रही है। इसको बिल्कुल हमने CM साहब के प्रोग्राम में शामिल करना है। अली रजाक साहब की बड़ी डिस्कशन हो चुकी है और जापान से वापसी पे कासिम भाई हम उनसे इसमें मिलेंगे, उनको ब्रीफ लेंगे। ये एक इतना आला प्रोग्राम है। अभी मुझसे पहले आकिब साहब ने इस पर बात की, सुमेर भाई ने इस पर बात की, सब आप लोगों ने बात की। एक शख्स, हर एक की फैमिली में जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मैं हाँ एक और जो मेरे रिपोर्टर्स बैठे हैं, ये जो मेरे बच्चे हैं और बच्चे बैठे हैं, ये जो कैमरामैन बैठे हैं, ये हमारी इस डिस्कशन को पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग भी दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोग हमें गाइड करते हैं। बाज़ का तो हमारे खिलाफ खबर लगाते हैं, लेकिन उसमें आपकी अच्छी नीयत होती है। आप चाहते हैं कि मिनिस्टर इसको रिस्पॉन्स करे, सेक्रेटरी इसको रिस्पॉन्स करे, प्रिंसिपल इस पर रिस्पॉन्स करे, तो हम आपकी हर उस मुस्बत तनकीद को वेलकम करते हैं। आप ऐसे ही सवाल करते रहें, हम आपकी खिदमत में जवाब देते रहेंगे, क्योंकि हम सबका मकसद एक है कि पाकिस्तान को बेहतर कैसे करना है, अपने माशरे को बेहतर कैसे करना है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे। सुमेर भाई आपको ज़हमत देंगे स्ट्रोक मैनेजमेंट में, जहां जहां हमें अपने स्टार्स की जरूरत होगी, हम चाहेंगे ये दोस्त आए, इनकी एक फिक्रा, इनका जो एक लफ्ज है उसको मिलियंस ऑफ लोग सुनते हैं। अब आपको बताएं कि गर्मी की छुट्टियां खत्म, मगर बड़ी क्लासेस के लिए आज से 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू। इंटरमीडिएट क्लासेस का भी आज से आगाज। छोटे बच्चे 1 सितंबर तक मौजे करेंगे। स्कूल सरबराहान का कहना है कि छोटी क्लासेस के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की तातीलात के बाद मरहलावार स्कूलों में जो तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। पहले मरहले में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लासेस जो हैं वो लगी और आज पहला रोज़ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन के एक सरकारी स्कूल में और यहाँ पर जो पहले रोज़ जो है क्लास पूरी देखने में आ रही है। बच्चों से बात करते और पूछते हैं कि कैसी रही उनकी छुट्टियाँ। और आप बताइएगा कैसी रही छुट्टियाँ आपकी? बहुत अच्छी गुजरी हैं। क्या क्या किया छुट्टियों में? बहुत कुछ। अब आज वापसी पे दिल लग गया है दोस्तों से दोस्तों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। एक और भी स्टूडेंट है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने छुट्टियों में क्या किया, कैसी गुजरी आप? छुट्टियों में बहुत इंजॉय किया, काम वगैरह किए, नानों घर गए, खेले वगैरह, तो मज़ा आया, इंजॉय किया। छुट्टियों का काम मुकम्मल है? जी मुकम्मल है। बिल्कुल। स्कूल के प्रिंसिपल राना अता भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। राना साहब बताइएगा कि पहले दिन हाज़िरी जो है वो मुकम्मल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से आए हैं और पहले दिन ही हाज़िरी जो है वो 9th 10th की मुकम्मल हो गई है और बच्चों के अंदर क्रासिटी है। टीचर्स जो है हमारे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तैयार होके आए हैं। छुट्टियों में उन्होंने भी न्यू मेथोडोलॉजी और नई टीचिंग टेक्निक्स जो पढ़ी हैं और बड़े अच्छे टीचर्स हैं हमारे, वो इन तक इंशाअल्लाह ताला सबक इनको देंगे और इनको तैयारी कराएंगे, क्योंकि जल्दी 9th का और 10th का जो है वो टेस्ट शुरू हो जाएंगे और फिर इस तरह से ये इनके दाखिले भी जाएंगे, बोर्ड के इनके इम्तहान होते हैं। तो ये बच्चे बड़े जज्बे के साथ आए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे अच्छे। इंतज़ामात मुकम्मल है छोटी क्लास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने 9th 10th के हमारे सारे इंतज़ामात मुकम्मल है। हमारा 6ठी से ऑनवर्ड है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। 9वीं 10वीं आ गई है, 6ठी 7वीं 8वीं भी जब आएगी उनकी तैयारियाँ भी इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगी। उनके भी कमरे जो हैं उनको ठीक किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है, सारा घास काटी जा रही है, फ्रेश हमने सारा अदारा जो है वो कर दिया है। हम उस्ताद भी तैयार हैं और अदारा भी तैयार है। बिल्कुल, उस्ताद भी तैयार हैं और अदारा भी तैयार है और क्लासेस का आगाज़ हो गया है। पहले रोज़ जो है 9वीं और 10वीं जमात जो है स्कूल में लगी और कहा यही जा रहा है, बताया यही गया है कि पूरी हाज़िरी जो है वो इस वक्त पहले रोज़ देखी गई है। तमाम स्टूडेंट्स आए हैं और अगली क्लासें जो 1 से शुरू होनी है उसके लिए भी इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रॉयलर गोश्त की भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू। दुकानदार मनमाने रेट्स पर मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने लगे। 595 रुपये किलो वाला गोश्त 650 रुपये में बिकने लगा है। साफ़ी गोश्त 750 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है।
जिंदा ब्रॉयलर होल सेल में 440 रुपए किलो में बिकने लगा। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतें जो हैं गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और इस बार सप्लाई जो की जा रही है जिंदा ब्रायलर की वो सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स महंगे दामों की जा रही है। यानी कि एक बार फिर ब्रायलर जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है। जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार रखी गई है, लेकिन मार्केट में इस वक्त जो ब्रायलर गोश्त जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, और साफ़ी ब्रायलर जो है वो 750 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर ज़िंदा ब्रायलर की कीमत के हवाले से बात की जाए तो फार्म गेट रेट ज़िंदा ब्रायलर का 383 रुपये मुकर्रर किया गया, और होल सेल ज़िंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है वो 397 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। लेकिन इस वक्त मार्केट में होल सेल रेट पर जो ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई दुकानों पे की जा रही है वो 397 के बरक 430 से 440 रुपए तक की जा रही है। इसी तरह अंडों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। 1 रुपया मज़ीद बढ़ाकर 295 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अंडे जो हैं वो 320 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है ब्रायलर की इस वक्त मार्केट में, क्योंकि ब्रायलर जो है दुकानदार ये कहते हैं कि ब्लैक में ज़िंदा ब्रायलर आ रहा है जिसकी वजह से महंगा हो रहा है। ये जो सा ना रेट जो गवर्नमेंट कह रही है ना कि इस रेट से आपने चलना है, उस रेट से नहीं है चल रहे। कोई 650 रुपये दे रहा है, कोई 700 रुपये दे रहा है। मुझे आप एक बात बताएं, गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी जब ये चिकन ही था, देखो मटन नहीं ले सकते, बीफ नहीं ले सकते, ठीक है, सब्ज़ी है, सब्ज़ी कोई सब्ज़ी ले लें, टिंडे ले लें, कोई सब्ज़ी ले लें 200-300 रुपये से किलो नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, गरीब आदमी जिसके 4 बच्चे हैं वो क्या करेगा? हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत जो है इस जानिब भी तवज्जो दे। कोई सब्ज़ी कोई जो है वो फल लोगों की कुव्वत ख़रीद में नहीं है, सरकारी रेल लिस्टों के मुताबिक नहीं है। ब्रायलर की कीमतें जो हैं गुज़िश्ता कई दिनों से जो है मार्केट में ब्लैक पर फ़रोख्त की जा रही हैं, और जो शहरी हैं वो महंगा ब्रायलर ख़रीदने पर मजबूर है। इंतज़ामिया की जानिब से 595 रुपये फ़ी किलो की सतह पर ब्रायलर फ़िक्स कर दिया गया। गुज़िश्ता 4 रोज़ से रेल इसमें यही कीमत दी जा रही है, लेकिन मार्केट की सूरत हाल जो है वो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर की सड़कों के लेवल का तयन न होने का इंकशाफ। कि सड़क का क्या लेवल होना चाहिए, किसी अदारे ने वाज़ेह मयार नहीं दिया। इदारे तहा सेक्रेटरी हाउसिंग के हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। कमेटी को 15 दिन में सिफारिशात देनी थी, डेडलाइन गुजर गई, कोई पेशरफ्त न हो सकी। मजीद जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन बताइएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की तरफ से लाहौर की तमाम सड़कें एक लेवल पर लाने का हुक्म दिया गया, लेकिन तहकीकात में इस अमर का इंकशाफ हुआ कि लाहौर की सड़कों के लेवल का आज तक कोई तयन ही नहीं किया गया कि सड़क का क्या लेवल होना चाहिए। किसी इदारे ने वाज़ेह म्यार ही बरकरार नहीं रखा। LDA टीपा और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने प्लिंथ या ग्राउंड लेवल की कोई स्टडी ही नहीं की। यही वजह है कि लाहौर की 1572 किलोमीटर प्राइमरी रोड्स को एक लेवल पर लाने का जो हुक्म है उसका जो अमली इम्कान है वो सवालिया निशान बन चुका है, और इदारे ताहाल सेक्रेटरी हाउसिंग के हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से गैर यकीनी का शिकार हैं। 20 रोज कबल महकमा हाउसिंग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें एक कमेटी तश्कील दी गई और उसको 15 रोज में अपनी सिफारिशात देने के अहकाम जारी किए गए। डेडलाइन गुजर गई लेकिन कोई पेशरफ्त ना हो सकी। सड़कों के लेवल पर यकसानियत का फैसला बगैर किसी फनी और तकनीकी बुनियाद के जारी किया गया। इससे कबल 2013 में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया था कि सड़क पर सड़क ना बनाई जाए, मगर इस 2013 के हुक्म पर भी अमल दरामद ना हो सका, जबकि गुज़िश्ता 10 वर्षों में LD और टीपा ने बारहा कई सड़कें बनाई, लेकिन बगैर मिलिंग किए जो गलियां और सड़कें हैं उनको कारपेट किया गया और पुरानी सतह को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। तहकीकात में ये भी बात सामने आई कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में 14 बार बगैर साइंसी तरीके के असफाल्ट का काम किया गया, जबकि फिरोजपुर रोड पर 22 मरतबा बगैर मिलिंग के नई तय डाल दी गई। मौजूदा सूरत हाल में कनाल रोड पर भी असफाल्ट का काम किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी सतह को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। ग्राउंड लेवल ना होने के बायस हर इदारा अपनी मर्जी से सड़कें तामीर कर रहा है और जो महकमा हाउसिंग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पार्किंग कंपनी में करप्शन का राज ताहाल बरकरार है। बोर्ड गैर फाल होने से ऑटोमेटेड सिस्टम की असलाहत न हो सकी। सिफारिशी नॉन टेक्निकल अहलकार पुरकशिश सीटों पर विराजमान है। बोर्ड इजलास न होने से 8.5 करोड़ रुपए गबन समेत दर्जनों इंक्वायरियां फाइलों में बंद होने का इंकशाफ हुआ है। ज़रा के मुताबिक डीसी सैयद मूसा रज़ा को चेयरमैन बने 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद सीओ पार्किंग कंपनी हदफ मुकर्रर ना कर सके। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। इमरान से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं पार्किंग कंपनी में करप्शन का राज ताहाल बरकरार है। बोर्ड गैर फाल होने से ऑटोमेटेड सिस्टम की असलाहत ना हो सकी। सिफारिशी नॉन टेक्निकल अहलकार पुरकशिश सीटों पर विराजमान है। बोर्ड इजलास न होने से 8.5 करोड़ रुपए गबन समेत दर्जनों इंक्वायरियां फाइलों में बंद होने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर, मजीद उनसे जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा। देखिए, काफी अहम कंपनी है पार्किंग कंपनी, और इस बारे से अगर देखा जाए शहर लाहौर की तो 216 डिजिटल साइट्स हैं जहां पर पार्किंग जो है उसकी इस्लाहात नहीं हो सकी। अहदाफ मुकर्रर किए गए थे जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए। 1.5 साल पंजाब हुकूमत को आए हो गया, और इसके साथ साथ नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। जबकि इस वक्त भी पार्किंग कंपनी की जो शिकायत है वो करप्शन के हवाले से आ रही हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा अहम जो नुकता है जिसमें पार्किंग कंपनी बोर्ड कानूनी तकाज़ों पर अमल पैरा नहीं हो सका। कंपनी बोर्ड गैर फाल होने से जो इस वक्त ऑटोमेटेड सिस्टम की इस्लाहत नहीं हो सकी। बाकायदा बोर्ड एजेंडा इजलास न होने से पार्किंग कंपनी में फैसले इल्तवा के सिफारशी नॉन टेक्निकल एहलकार पुरकशिश सीटों पर विराजमान है। बोर्ड इजलास न होने से 8.5 करोड़ रुपए का गबन जो किया गया था वो भी फाइलों में इस वक्त बंद है, और इसके साथ साथ जो इंक्वायरियां हैं, दर्जनों इंक्वायरियां जो बंद होने का इंकशाफ हुआ है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लाहौर शहर के डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा पार्किंग कंपनी के 1 साल से मुकर्रर हैं। जरा ये बता रहे हैं कि 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद सीओ पार्किंग कंपनी ने जो इनको अहदाफ दिए गए थे उन्होंने भी मुकम्मल और नहीं कर, और इसके साथ साथ इस बोर्ड में जो इस वक्त सीटीओ लाहौर समेत सरकारी मेंबर बोर्ड का हिस्सा है, जबकि पार्किंग कंपनी में ऑन कैमरा बोर्ड का ताहाल एक भी इजलास नहीं बुलाया जा सका। नए पार्किंग कंपनी के करोड़ी हुकूमत पंजाब के लिए भी चैलेंज है। जरा ये भी कह रहे हैं कि कंपनी ने 8.5 करोड़ के गबन से मुतालिक बोर्ड को आगाह ही नहीं किया, जबकि कंपनी बोर्ड के 4 प्राइवेट बोर्ड मेंबर्स का चुनाव इल्तवा का शिकार पुरकशिश बड़ी 5 असामियां भी खाली हैं, जबकि सिफारशी नॉन टेक्निकल एहलकारों को पुरकशिश सीटों पर जो है तैनात किया हुआ है। असामियों पर टेक्निकल अफसरों का इख्तियार कंपनी बोर्ड के पास है, जबकि कंपनी बोर्ड जो है इस वक्त फाल नहीं है, जिस पर इस पर 1 साल से इसी तरह ही जो जूनियर लोग हैं उनको सीनियर सीट पर बढ़ाया गया है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी की खाली सीट पर नॉन टेक्निकल एहलकार तैनात हैं, जबकि इंटरनल ऑडिटर सीनियर मैनेजर ऑपरेशन जीएम ऑपरेशन पार्किंग कंपनी की असामियां खाली हैं, जबकि क़वाइद के मुताबिक असामियों के लिए इश्तिहार हुई है। कानून के मुताबिक पार्किंग कंपनी बोर्ड इजलास बुलाकर अफसरान को भर्ती करने का इजाज़ है, जबकि पार्किंग कंपनी का ढांचा ताहाल मजबूत नहीं हो सका। इस सिलसिले में कमिश्नर व डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना है कि सीओ पार्किंग कंपनी को एहदाफ दिए गए थे, उनको टारगेट मुकम्मल करने चाहिए, और इसके ऊपर बहुत जल्द इजलास भी बुलाएंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का दाखिला प्रोग्राम में शानदार तोसी का ऐलान। मैट्रिक साइंस के साथ भी दाखिले मुमकिन। प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल तलबा के लिए भी दरवाजे खुल गए। यूनिवर्सिटी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब जो मैट्रिक है वो उसके तलबा साइंस के साथ भी कर सकते हैं, और ना सिर्फ मैट्रिक बल्कि जो इंटरमीडिएट है उसमें भी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की क्लासेस जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया है। इसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो बोर्ड ने दे दी है, और अब जो मुतलका जो अदारे हैं उनसे मंजूरी ली जाएगी, जिसमें IBCC भी शामिल है। तो बोर्ड हुकाम और इसके साथ साथ जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हुकाम का कहना है कि इससे एक तो तलबा को आसानी होगी, खासतौर पर ऐसे तलबा जो कि काम कर रहे होते हैं और उनके लिए टाइम नहीं होता कि वो क्लासेस अटेंड कर सकें, तो फाजिलाती तालीम के जरिए से वो मैट्रिक साइंस से कर सकेंगे, और उसके साथ साथ इंटरमीडिएट में भी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की क्लासेस
और डिग्री जो सर्टिफिकेट है वो हासिल कर सकेंगे। उनका कहना है कि तलबा की तादाद जो है वो इस फैसले से उसमें भी इजाफा होगा और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का जो काम है कि फाजिलाती तालीम ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक फराहम की जाए, तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उनमें भी इससे कमी वाक़या होगी। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तालीम, तहकीक, खदमत खल्क और क़यादत में कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की सलाहियतों का होगा एतराफ़। मेडिकल तलबा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ का पल स्टार प्रोग्राम मुतारिफ। 45 इल्हाक शुदा मेडिकल कॉलेजों के बेहतरीन तलबा में से हर साल पल स्टार्स का इंतखाब होगा। कॉलेजेस हर साल मई में तलबा नामजद करेंगे। आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं, तालीम, तहकीक, खदमत खल्क और क़यादत में कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की सलाहियतों का होगा एतराफ़। मेडिकल तलबा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ का पल स्टार प्रोग्राम मुतारिफ। 45 इल्हाक शुदा मेडिकल कॉलेजों के बेहतरीन तलबा में से हर साल पल स्टार्स का इंतखाब होगा। कॉलेजेस हर साल मई में तलबा नामजद करेंगे। आपको एक दफ़ा फिर से अहम खबर के हवाले से बताते चले, तालीम, तहकीक, खदमत खल्क और क़यादत में कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की सलाहियतों का होगा एतराफ़। मेडिकल तलबा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ का पल स्टार प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया गया। रैशनलाइजेशन पर बड़े दावे, हकीकत खुल गई। 47,000 इजाफी असासा करार, मगर हकीकत में सिर्फ 14,000 निकले। स्कूलों में असासा की कमी बदस्तूर बरकरार। रैशनलाइजेशन से सिर्फ 14,000 असासा का बंदोबस्त हो सका। पंजाब में 50,000 असासा की शॉर्टेज बरकरार। 1,000 असासा ने भी ज्वाइन ना किया। नई पोस्टिंग पर ना आने वाले असासा के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से रैशनलाइजेशन के हवाले से एक साल से दावे किए जा रहे थे कि स्कूलों में असातिज़ा की जो शॉर्टेज है वो रैशनलाइजेशन के जरिए से पूरी कर दी जाएगी। और इब्तदाई तौर पर वज़ीर तालीम का कहना था कि 47,000 असातिज़ा जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ स्कूलों में अजाफी हैं, इनको रैशनलाइज किया जाएगा और इनको वहाँ तैनात किया जाएगा जहाँ पर असातिज़ा की शॉर्टेज है। लेकिन अब जब रैशनलाइजेशन मुकम्मल होने जा रही है तो 47,000 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 14,000 असातिज़ा हैं जिनकी रैशनलाइजेशन की जा रही है और इसमें से भी 1,000 असातिज़ा ने ज्वाइनिंग से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ महकमा स्कूल एजुकेशन इस हवाले से असातिज़ा को प्रेशराइज कर रहा है और धमका रहा है कि जो असातिज़ा रैशनलाइजेशन के तहत जो इनकी नई पोस्टिंग है वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो इनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इसके साथ साथ जो स्कूल हैं वहाँ पर ताहाल 50,000 के करीब असामियाँ खाली हैं और ये असातिज़ा की शॉर्टेज से निज़ाम तालीम जो है बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का तहसील वाखा का दौरा। डेंगू सर्वेलेंस का फील्ड में जायजा लिया गया। डेंगू लार्वा की बरामदगी पर एतराफ़ के 10 घरों में स्प्रे करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। आज के शहर को डेंगू से महफूज बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया की मौसर कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने तहसील वाखा का दौरा किया है। डेंगू सर्वेलेंस का फील्ड में जायजा लिया। चीफ ऑफिसर समेत तमाम अफसरान उनके हमरा मौजूद हैं। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को चलो रोड और इतराफ के इलाकों में डेंगू सर्वेलेंस की चेकिंग करवाई गई। सीओ हेल्थ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई। इस वजह से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया जिस पर DC लाहौर का यह कहना था डेंगू लार्वे की बरामदगी पर इतराफ के 10 घरों में स्प्रे किया जाए। डेंगू की रोकथाम के लिए आइंदा 4 हफ्ते इंतहाई अहम है। डेंगू सर्विस को मजीद मौसर बनाने के लिए तमाम टीमें मुतहरिक रहे हैं। शहरियों को की सेहत को तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलिन जिम्मेदारी है। डेंगू के खात्मे के लिए अवामी ताउन का कलीदी हैसियत रखता है। इस वजह से तमाम अफसरान डेंगू सर्विस की सख्त मॉनिटरिंग है। DC लाहौर का कहना था कि इंडोर आउटडोर सर्विस लाजमी की जाए और इसके साथ साथ चेकिंग से अपील की जा रही है, बार बार अपील की जा रही है कि हमले के साथ ताउन करें ताकि डेंगू लार्वे को खत्म करने के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम नजर आएँ। जी इमरान, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताया कि PDMA ने नाला लई की लाइव मॉनिटरिंग शुरू कर दी। बराह रास्त मॉनिटरिंग का अमल सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ताउन से शुरू किया गया है। DG PDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक नाला लई के 9 हसास मकामात पर CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल, बताइएगा। देखिए, रावलपिंडी का जो नाला लई है वो मतलब मानसून के सीजन के दौरान तकरीबन हर साल ही वहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है और भी बहुत सारे नुकसानात का बाइस बनता है और इस मरतबा भी रमा मानसून के दौरान भी ऐसी ही वहाँ पर सूरत हाल देखने में आई।
تو اس کے پیش نظر اب پی ڈی ایم پنجاب نے نعرہ لئی کی جو براہ راست مانیٹرنگ ہے اس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس کو پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس جو لاہور میں واقع ہے یہاں سے مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنڈی میں ریجنل آفس ہے وہاں پر بھی اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ سی ایس پی ڈیز کے تعاون سے یہ براہ راست مانیٹرنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ نعرہ لئی کے 9 حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے انسٹال کیے گئے ہیں جہاں سے ہر وقت صورتحال پر نظر رکھی جاتی ہے، اور نہ صرف نعرہ لئی بلکہ پوٹھا ریجن میں جو دیگر حساس مقامات ہیں وہاں کی بھی براہ راست مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ کہیں پر بھی اگر کوئی فلیش فلڈنگ کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بر وقت مانیٹر کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نعرہ لئی میں یا اس کے جو دفعہ 144 کا نفاذ ہے اس کو یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی، اور ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹیا کا کہنا ہے کہ اس تمام ایکٹیویٹی کا مقصد شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، اور اس میں انہوں نے جو شہری ہیں ان سے بھی بھرپور تعاون کی اپیل کی ہے کہ جو حکومتی اداروں سے شہریوں کا تعاون ہے وہ بہتر نتائج پیدا کرنے کا حامل بن سکتا ہے۔ جی سہیل کیسر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ممکنہ کلاؤڈ برسٹنگ، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات، آئی جی پنجاب کا سیلاب کے پیش نظر پولیس کو الرٹ رہنے کا حکم، ڈاکٹر عثمان انور کی ریسکیو آپریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایات۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بلائی پنجاب میں ممکنہ کلاؤڈ برسٹ اور دیگر اضلاع میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات کے پیش نظر پنجاب پولیس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مری، راولپنڈی، جہلم، چکواس میں متعلقہ اضلاع میں پولیس کو ہائی لائٹ رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ٹیموں کو ممکنہ بارشوں کی سیلابی صورتحال میں ریسکیو آپریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس وجہ سے آئی جی پنجاب نے تمام آر پی اوز، ڈی پی اوز کو حکم دیا ہے کہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں کی جو ہے وہ خود نگرانی کریں گے۔ آئی جی پنجاب کا اس وجہ سے مزید کہنا تھا کہ پولیس فورس امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے ضلعی حکومت ریسکیو اداروں کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن کو بھی یقینی بنائیں گے۔ دریاؤں کے کنارے آباد احاطوں آبادیوں میں پولیس کی امدادی ٹیموں کی پیٹرولنگ بغیر سے جاری رکھی جائے۔ ممکنہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ریلیف کیمپس متاثرہ افراد کی امداد اور سیکورٹی کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ سیلاب کے خطرے سے دوچار شہریوں کی جان و مال اور املاک کا تحفظ جن کا کہنا ہے کہ اس کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ سیلاب کے ممکنہ خطرات سے درپیش علاقے درائی چیک پوسٹوں پر پیٹرولنگ کا عمل بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جن کا اس وجہ سے مزید کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کو تحفظ، کھانا، دوائیات اور دیگر ضروری زندگی کی چیزیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب پولیس کے کنٹرول سینٹر سے ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر متعلقہ اضلاع کی مسلسل جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے مدثر، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آئی جی پنجاب کے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات، ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین کے مسائل پر فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ انسپیکٹر انجم توقیر، سب انسپیکٹر سہیل ظفر، سب انسپیکٹر منصور خالد کی پروموشن کی درخواستوں پر ریلیف کی ہدایت کی گئی۔ اسی پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے اور ریلیف کے بارے میں متعلقہ افسران کو احکامات دیے۔ انسپیکٹر انجم تقیر کی ترقی کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو ریلیف کے بارے میں آئی جی پنجاب نے ہدایت جاری کی۔ اس کے علاوہ سب انسپیکٹر سید ظفر کی پروموشن کی درخواست پر ڈی اے جی سب انسپیکٹر 1 کو ریلیف کے بارے میں ہدایت جاری کی۔ اس کے علاوہ سب انسپیکٹر مسعود خالد کی پروموشن کی درخواست پر ڈی اے جی سب انسپیکٹر 1 کو ریلیف کے بارے میں حکم دیا۔ ایسا ہی حمید سلطان کی مالی امداد کی درخواست پر ڈی اے جی ویلفیئر اینڈ فنانس کو ریلیف کے بارے میں حکم دیا۔ اس وجہ سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن، ویلفیئر سے متعلق دیگر درخواستوں پر بھی جو ہے وہ احکامات جاری کیے اور متعلقہ افسران کو فوری حکم دیا کہ جو ملازمین کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا۔ جی مدثر حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت میٹنگ، پینڈنگ اور زیر التواء مقدمات کی پروگریس رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ افسران کو زیر التواء اور پینڈنگ کیسز کے چلان جلد از جلد عدالتوں میں جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت میٹنگ، پینڈنگ اور زیر التواء مقدمات کی پروگریس رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ افسران کو زیر التواء اور پینڈنگ کیسز کے چلان جلد از جلد عدالتوں میں جمع کروانے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت میٹنگ، پینڈنگ اور زیر التواء مقدمات کی پروگریس رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
अफसरान को ज़ेर अल्तवा और पेंडिंग केसेस के चालान जल्द अज जल्द अदालतों में जमा करवाने की हिदायत की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। साबिक वज़ीर आला की बार बार गैर हाजिरी पर अदालत का इशारे बरहमी। परवेज इलाही की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने परवेज इलाही के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चौधरी परवेज इलाही को 10,000 रुपये के ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। आपको बताएं कि स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आला की बार बार गैर हाजिरी पर अदालत का इशारे बरहमी। परवेज इलाही की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त खारिज की गई। अदालत ने परवेज इलाही के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चौधरी परवेज इलाही को 10,000 रुपये के ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। आपको बताएं कि स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर मातहत अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल जारी है। केसेस बगैर कार्रवाई मुलतवी किए जाने लगे हैं। पंजाब बार कौंसिल ने वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे रखी है। पंजाब बार कौंसिल का वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी खारिज करने का मुतालिबा भी किया गया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर मातहत अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल जारी है। केसेस बगैर कार्रवाई मुलतवी किए जाने लगे हैं और पंजाब बार कौंसिल ने वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे रखी है। पंजाब बार कौंसिल का वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी खारिज करने का मुतालिबा भी किया गया है। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर मातहत अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल जारी है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हद की इज्जत का केस। अदालतों में मौसम गर्मा की तातीलात और बार कौंसिल की हड़ताल के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। सेशन कोर्ट ने समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज़्ज़त का ये केस है। अदालतों में मौसम गर्मा की तातीलात और बार कौंसिल की हड़ताल के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सेशन कोर्ट ने समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हद के इज़्ज़त का केस। अदालतों में मौसम गर्मा की तातीलात और बार कौंसिल की हड़ताल के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। JUI वफ्द की हाफिज अब्दुर्रहमान की क़यादत में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक से मुलाकात हुई। वफ्द ने मदनी मस्जिद की शहादत के खिलाफ असूली मौक़िफ़ पर खराज तहसीन पेश किया। 23 अगस्त को मुस्लिम टाउन मोड़ पे मुनक़िदा कौमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई मोदबिर और ज़रीक सियासतदान है। JUI का मदनी मस्जिद की तामीर नौ के मुतालबे की हमायत करता हूँ। जनरल सेक्रेटरी JUI लाहौर हाफिज अब्दुर्रहमान ने कहा कि JUI ने फ़िरका वराना फ़साद की हमेशा मजम्मत की है। मुलाकात में यासीन सोहल MPA, नायब सदर नून लीग लाहौर मियाँ शहबाज गौस भी शरीक थे।